Hello everyone, welcome back to the video lecture series of Information Technology. And this Information Technology is for Arts, Commerce and Science. We are checking with Advanced Web Designing, and today in our lecture number 7, we are going to study Universal and Group Selector with positioning in CSS. So let's move ahead and revise first. In the last lecture, we have checked what is CSS ID Selector, and in CSS ID Selector, we have checked with the demonstration of it, and we have checked that CSS ID selector is having hash character to address the type of selector which we are using. Now it is used for one line of selector, that means it is CSS ID selector which is implemented for only one element. So we have used here CSS ID selector. When it is CSS class selector, so in CSS class selector we have used dot, that is full stop symbol, to call the particular class, and this class selector is used for group of elements within our HTML. So here it is dot class selector, and this we have checked with the demonstration also. Now today we are going to check one more selector, that is what is universal selector and how that universal selector can be implemented. So what is universal selector? The universal selector is used as the wildcard character. It selects all the elements on the web page. इसका नाम जैसे है universal, that is which is applicable, which can be implemented for everything. So universal selector is used as a wildcard character because it selects all the elements on your web page, and what are the changes you would like to make to all the elements on your web page. This can be implemented by using universal selector. So this is the program which is given in your textbook for universal selector. Now here you can check star is given. Star always represents for all. Okay. So whenever you go for DBMS also, you know, to type the query, select star from SQL or select star from any table name you will specify. So that is for all. So star means it is going to implement for all the elements in your web page. So now star once you will write over here, then what you are going to do, you are going to have the parameters, the properties and attributes as this can be implemented for all the heads or for all the elements of HTML. So no need to specify the name of any tag. Directly we will implement with the properties. What properties we want for all tags? So we want color to be in green and font size to 20 px. So this we will be implementing for all the elements which we are going to use on your HTML web page. So as we know CSS style use करने का है, तो style में tag को use किया, and then we have implemented with the body tag. Body tag में हमने जो contents लिखे हैं, तो ये कंटेंट्स के साथ में अगर हमें इसका आउटपुट चेक करना है तो क्या होगा, आउटपुट जो हम लोगों को मिलने वाला है कि सारे जो भी आपने टैग्स यूज किए हैं वो सभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा, सबके फॉन्ट सेम रहेंगे, सबका फॉन्ट साइज सेम रहेगा, और सबका कलर क्या रहने वाला है, तो सबका कलर ग्रीन रहने वाला है. So students will go for the coding window and will check fast track how universal selector can be implemented. So students, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया है और मैं कोडिंग को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. हम लोगों की जो कोडिंग लिखी गई है यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए, तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया है. यू कैन प्रैक्टिस दिस बाय टाइपिंग ऑल्सो. क्या किया है हमने यहाँ पे चेक करो. तो यहाँ पे हमने स्टार यूज किया है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि स्टार का यूज क्या रहेगा. सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द कंटेंट्स व्हाट एवर यू विल राइट इनटू द बॉडी टैग. सो कौन से कंटेंट्स आपने यूज किए हैं. सो आपने कंटेंट्स जो यूज किए हैं वो ये सारे हो गए. तो हमने स्टाइल टैग में यूज किया है ऐसे सारे प्रॉपर्टीज के लिए कि जिसका क्या प्रॉपर्टीज रहने वाला है, जिसके वैल्यूज क्या रहने वाला है. तो ये जो कंटेंट्स रहेगा इन सब का कलर ग्रीन में रहेगा, जिसकी फॉन्ट साइज 20 px रहेगी. सो नाउ हियर वी विल चेक कि इसको सेव करेंगे. सेव करने के टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वी विल यूज इट एज यूनी. तो यूनी करने के बाद में डॉट लिखेंगे HTML. सेव करेंगे डेस्कटॉप पे ही. सेव करने के बाद में चेक करते हैं कि डेस्कटॉप में फाइल क्रिएट हुई क्या. तो यस, डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट हो गई. ओपन विद करते हैं, क्रोम में जाएंगे,
तो इसका आउटपुट जो है वो हम लोगों को ये सामने रहेगा। जस्ट अ मिनट, में स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ। सो सी हियर यू कैन हैव द आउटपुट। नाउ हियर इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द कलर ग्रीन। तो यहाँ पे आपको सारे कलर ग्रीन में दिख रहा है, जिसका सबका फॉन्ट साइज जो है वो सेम दिख रहा है। आपने यहाँ पे हेडिंग लेवल 2 यूज किया था। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये हेडिंग लेवल जो है वो चेंज करने का है, तो आप हेडिंग लेवल को चेंज करो, यहाँ पे जाओ, सेव करो और इसको रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे चेक करो कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या। तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो गया। सो दिस CSS is applied to the heading H1। नाउ यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं H3 यूज कर रही हूँ, चलो आपका जो है उसी को कॉमन रख रही हूँ, यहाँ पे सेम मैं H2 को कॉमन रख रही हूँ, यहाँ पे कलर जाके जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो कलर चेंज हो गया क्या? तो लेट्स सी कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। इसको भी जाके सेव करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ जो है इसके साथ में मैं चेक करती हूँ। मुझे फिर से चाहिए कि यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँ, तो यहाँ पे जाके चेंजेस करते हैं, यहाँ पे जाके सेव करते हैं, यहाँ जाके कलर जो है उसका चेंज करके देखते हैं तो हो रहा है क्या कुछ चेंजेस। यस, चेक करते हैं, यहाँ जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यस चेंजेस में सेव हो रहा है। सो दिस वे इट इज द वन कि यहाँ पे आपके चेंजेस हो जाएंगे। जहां कहीं से भी आप चाहते हो कि ये सारे प्रॉपर्टीज के लिए सेम रहेगा, तो ये सेम इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग योर यूनिवर्सल सिलेक्टर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या हो रहा है कि सभी के लिए कॉमन इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। सो मूविंग अहेड विथ ग्रुप सिलेक्टर। व्हाट इज ग्रुप सिलेक्टर? सो ग्रुप सिलेक्टर एज द नेम इट इज लाइक हमने इसके पहले जो देखा था यूनिवर्सल सिलेक्टर सबके लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ग्रुप सिलेक्टर क्या करेगा? जैसे इसका नाम है, ग्रुप को इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी हमें चेंजेस करना है, जो भी हमें स्टाइल करना है हमारे वेब पेज में। सो लेट्स मूव अहेड चेक। The grouping selector is used to select all elements with the same style definition. It is used to minimize the code. क्या बोला गया है कि ग्रुप सिलेक्टर क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा कि कॉमनली कौन से प्रॉपर्टी पर्टिकुलर ग्रुप को हमें इंप्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से आपका कोडिंग जो है वो कम हो जाएगा। Commas are used to separate each selector in grouping. तो देखो क्या बोला है, let's see. When CSS code without group selector अगर हमें implement करना तो हम लोग क्या करते हैं? टैग लिखते हैं, HTML एलिमेंट कौन सा चाहिए और क्या प्रॉपर्टीज हमें implement करना है with its values, अलग लिखते हैं हम लोग। बट अगर हमें ग्रुप सिलेक्टर यूज करना है तो क्या करेंगे? So we can see here now when we need to define the CSS property for all elements, it can be grouped as H1, कॉमा से सेपरेट करो, H2 कॉमा से सेपरेट करो, P पैराग्राफ के लिए इंप्लीमेंट करो। सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टीज क्या चाहिए? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में चाहिए और कलर उसका ब्लू चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गया। और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कौन से प्रॉपर्टीज लगाना है वो भी कॉमन हो गया। तो वी नीड नॉट टू गो फॉर 3 लाइन का कोड, इंसिस्ट वी कैन डायरेक्टली गो फॉर ओनली 1 लाइन का कोड सेपरेटिंग द टैग्स विथ कॉमास। ओके, नाउ यहाँ पे उसका एग्जांपल चेक करते हैं। देखो स्टाइल टैग के अंदर में हम लोगों को पता है कि CSS में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्टाइल टैग यूज करेंगे। स्टाइल टैग में हमने ग्रुप सिलेक्टर कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो सेम कोड को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। H1, H2 और P के साथ में जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना है विद इट्स वैल्यू, तो होगा क्या? होगा ये आउटपुट जो आपका आएगा उसमें ये सारे कलर अलाइनमेंट एंड कलर की प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ब्लू कलर सभी का बन जाएगा, सभी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर ग्रुप सिलेक्टर। उसका इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग कोडिंग विंडो पे चेक कर लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड फॉर आवर कोडिंग विंडो। सो स्टूडेंट्स, नाउ अनदर नोटपैड ओपन करके मैं यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आपके ग्रुप सिलेक्टर का जो कोडिंग है टेक्स्ट बुक में दिया गया। हमने क्या चेक किया है? स्टाइल टैग के अंदर में हम लोग चेक कर रहे हैं कि बार बार एक ही कोडिंग लिखने के अलावा अगर सेम हमें प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना है, सेम वैल्यूज इंप्लीमेंट करना है, सो वी विल ग्रुप इट, वी विल क्लब इट एंड टू सेपरेट द टैग्स वी विल यूज कॉमा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कॉमन इंप्लीमेंटेशन है वो किया ग्रुप सिलेक्टर के साथ में। नाउ वी विल सी कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आता है। चलो चेक करते हैं, इसे सेव करेंगे हम लोग। इसे सेव करने के टाइम पे हम लोग यूज करेंगे group.html। group.html मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो group.html डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है क्या? यस, हो गया। यहाँ जाके मैं चेक करूंगी, इसे ओपन करूंगी
तो ये आ गया हमारा आउटपुट। नाउ इसके साथ में जब मुझे चेक करना है कि ये हमने बॉडी टैग में क्या लिखा है, तो बॉडी टैग में हमने हेडिंग लेवल्स यूज किए। हेडिंग लेवल्स के साथ में मैंने यूज किया है H2 एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि ये सारे कंटेंट सेम इम्प्लीमेंटेशन हो गए। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में ना होते हुए मैं इन सबको लेफ्ट में करना चाहती हूँ, या फिर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ चाहती हूँ कि इसके जगह पे मैं रेड करूँ। ओके, तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जाके सेव कर दिया, यहाँ जाके हमने रिफ्रेश कर दिया, यस चेंजेस हो गए। यहाँ जाके मैं चाहती हूँ कि वो लेफ्ट में नहीं राइट में हो, और मैं यहाँ चाहती हूँ कि ये जो कलर है वो ग्रीन रहे। तो चलो चेक करते हैं। इसे सेव किया मैंने, सेव करने के बाद में इसे मैंने रिफ्रेश किया, यस चेंजेस हो गए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने ग्रुप के लिए चेंजेस किया है H1, H2 एंड P के लिए। तो उस हिसाब से अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं P को यहाँ से निकाल दूँ। तो देखते हैं कि कुछ चेंजेस जो हमने किए हैं वो हो पा रहे हैं क्या। तो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश कर रही हूँ। समझ गए क्या हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ H1 और H2 को इम्प्लीमेंट हुआ। और पैराग्राफ जो है हमारा वो नॉर्मल HTML का जो आउटपुट रहता है उस हिसाब से आपका यहाँ पे आउटपुट आया। चलो वापस जाते हैं, वापस जाके यहाँ पे P लिखते हैं। चलो सेव करते हैं, इसे सेव करके चेक करते हैं, आ गया वापस। चलो यार, इसे आप चाहते हो कि नहीं मैं सेंटर में लिखूं, तो सेंटर में करो और इसे सेव करो, इसे रिफ्रेश करो, वापस आ गया आपका आउटपुट। Okay, so this is about your group selector. Now the next topic is about the positioning in CSS. क्या होता है positioning in CSS? We'll see very soon. So moving ahead for positioning in CSS. क्या होता है positioning in CSS? तो CSS helps to position the HTML elements. The position property is used to set the position. टॉपिक के हिसाब से पोजीशन कैसे किया जाएगा सेट, ये चेक करने के लिए कोई भी HTML एलिमेंट का पोजीशन आपके वेब पेज पे कैसा रहे, वो चेक करने के लिए हम लोग पोजीशनिंग यूज करेंगे। सो वो पोजीशन कैसे रह सकता है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स रहेंगे। पोजीशन सेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स रहेंगे। कौन से फॉर्मेट्स है, द एलिमेंट्स कैन बी पोजीशन यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे जब आपके एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स जो आप वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो यूजिंग HTML, सो वो एलिमेंट्स को पोजीशनिंग सेट करने के लिए ये पोजीशनिंग इन CSS हम लोग यूज करेंगे। नाउ अगर उसका सिंटैक्स हमें चेक करना है तो क्या किया जाएगा, तो जो भी सिलेक्टर, जो भी HTML टैग आप यूज करना चाहते हो उसका पोजीशन और कैसे पोजीशन सेट करना है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो हम लोग चेक करने वाले हैं। टॉप से कैसे, लेफ्ट से कैसे, राइट से कैसे, उसकी वैल्यूज कैसे रहेगी। तो वेयर द values in the position are fixed, absolute, relative and the values of top and bottom, left, right are in pixel। तो क्या होगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वो वैल्यू क्या रहेगी, तो वो वैल्यू फिक्स रह सकती है, एब्सोल्यूट रह सकती है, रिलेटिव रह सकती है, और जो वैल्यूज हम लोग टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के लिए बोल रहे हैं वो इन पिक्सेल्स रहेंगे। नाउ मूविंग अहेड, अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो कौन से तरीके हैं हमारे पास में इम्प्लीमेंट करने के, तो उसके लिए हमें टाइप्स दिए गए हैं कि पोजीशन सेट करने के लिए CSS में कौन से तरीके हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स एंड द टाइप्स आर एज गिवन। नाउ विल सी वन बाय वन कि ये चारों टाइप्स का मीनिंग कैसे होता है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जा सकता है, सो यू कैन रीड इट वन बाय वन। क्या है, तो पहला टाइप दिया गया है स्टैटिक पोजीशनिंग। स्टैटिक पोजीशनिंग जो होता है वो नाम के हिसाब से हमेशा डिफॉल्ट पोजीशन रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ और HTML एलिमेंट जो कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्टैटिक पोजीशनिंग यानी क्या हो जाएगा, जो डिफॉल्ट पोजीशन होता है HTML एलिमेंट्स का, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज, बिकॉज उसकी पोजीशन जो है वो डिफॉल्ट में सेट हुई है। सो दैट इज स्टैटिक पोजीशनिंग। नाउ सेकंड टाइप जो दिया गया है दैट इज फिक्स पोजीशनिंग। सो फिक्स पोजीशनिंग क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर।
तो क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट रहेगा वो ब्राउजर पे फिक्स करेगा। नाउ ये फिक्स करने के टाइम पे क्या इंप्लीमेंटेशन होंगे, द फिक्स प्रॉपर्टी फोर्सेस एन एलिमेंट इनटू अ फिक्स पोजीशन, उसकी पोजीशन को फिक्स किया जाएगा रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। द फिक्स एलिमेंट विल नॉट मूव, फिक्स पोजीशन होने के बाद में चेंज हो पाएगा क्या, नो चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज द फिक्स प्रॉपर्टी इज फोर्सिंग द एलिमेंट to a fixed position, so it will not move even when the page is scrolled। आप ऊपर नीचे करोगे पेज को तो भी उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। नाउ थर्ड इज गिवन एज रिलेटिव पोजिशनिंग, नाम के हिसाब से चेक करेंगे। द रिलेटिव पोजिशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू द नॉर्मल पोजीशन, तो जिस हिसाब से उसका नॉर्मल पोजिशनिंग रहेगा उस हिसाब से उसका प्रॉपर्टी जो है वो सेट होते जाएगा एलिमेंट के लिए कि वो कैसे पोजीशन पे सेट हो। नाउ फोर्थ वन इज अबाउट एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। फोर्थ वन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या कहता है, सो दिस प्रॉपर्टी सेट्स एन एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन and it is not affected by the flow of page। तो आप पेज को स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप करो, क्या कुछ भी करो, तो उसकी जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग सेट रहेगी स्पेसिफिक लोकेशन पे, उसका सेट रहेगा प्रॉपर्टी। एंड दिस प्रॉपर्टी पोजीशन द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेट रहेंगे उसी स्क्रीन पे, उसी कोऑर्डिनेट्स पे, उसी एक्सिस पे, उसी लोकेशन पे आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पे जो एलिमेंट सेट किए हैं वो चेक कर पाओगे। सो दिस प्रॉपर्टी पोजीशंस द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू योर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है उसका सेट किया जाएगा। नाउ मूविंग अहेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, इन दोनों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए तो वो डिफॉल्ट पोजीशन रहेगा। और क्या होता है दोनों ये पोजीशन में, विल चेक दैट इनटू आवर कोडिंग विंडो। सो लेट्स मूव अहेड फॉर आवर कोडिंग विंडो। सो हियर मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है, कोडिंग को कॉपी पेस्ट किया है। स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में जो कोडिंग है मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है। I'm not typing something new over here. Now here you can observe that when we need to check for the positioning, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक के लिए डिफॉल्ट रहेगा तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन चेक नहीं कर रहे हैं, ये है हमारा फिक्स पोजिशनिंग। क्या है, सिंटैक्स के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। पोजीशन क्या देना है, तो पोजीशन देना है हमें फिक्स, टॉप 50 px, राइट में 5 px, कलर जो है ब्लू। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, अगर मैं इसे सेव करती हूँ तो उसका पोजीशनिंग कैसे रहेगा चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर रही हूँ विद फिक्स डॉट html, डेस्कटॉप पे चेक कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। चलो देखते हैं कि फिक्स का आ गया क्या। यस, मैं इसे ओपन कर रही हूँ विद गूगल क्रोम और मैं यहाँ पे चेक करती हूँ अभी कि हमें इसका आउटपुट दिख रहा है क्या। यस, तो देखिए इसका आउटपुट जो है वो हमें ऐसे दिख रहा है। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पे प्लीज चेक दैट ये जो 3-4 पैराग्राफ हमने यूज किए हैं इन सब के लिए हमने पोजीशनिंग कॉल अप नहीं किया। हमने क्या किया है, तो यहाँ पे फिक्स को हमने कॉल किया, क्लास जो हम लोग क्लास सिलेक्टर है हमारा वो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो p क्लास फिक्स, यहाँ पे हमने जो क्लास डिक्लेयर किया था उसको कॉल अप किया। क्या बोलता है वो क्लास कि ये जो पैराग्राफ की रहेगी पोजीशन, दिस इज द फिक्स्ड पोजीशनिंग वाला कैरेक्टर। सो ये जो टेक्स्ट रहेगा इसके लिए फिक्स वाला क्लास को कॉल करो। फिक्स वाला क्लास क्या बोलता है, तो पोजीशन जो है उसकी ये सेट की गई है, इसी को इम्प्लीमेंट करो। तो आउटपुट में जब हम लोग देखेंगे बाकी सब जो है वो नॉर्मलाइज्ड है एंड दिस इज द फिक्स पोजीशन टेक्स्ट। उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो फिक्स नाम का कॉल जो क्लास जो है उसे कॉल करके उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके वैल्यूज को इम्प्लीमेंट किया गया है। सो दिस वे इफ यू विल चेक इट इज फॉर फिक्स लोकेशन। चाहते हो तो हमेशा जैसे हम लोग छेड़छाड़ करते हैं वैसे चेंजेस करते हैं, वैसे चेंजेस करो, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो देखो कलर चेंज हो रहा है क्या। अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे इसे नहीं रखना है तो ओके, मैं यहाँ से इसे निकाल देती हूँ, देखते हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं क्या। चलो देखते हैं, यहाँ पे आके चेक करो तो चेंजेस हो गए। तो इस तरह से आप जो है जो चेंजेस कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो प्रॉपर्टीज का इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है क्या। सो विद द फिक्स लोकेशन स्क्रॉलिंग करो या कुछ भी करो, इसका जो ये देखिए मैं स्क्रॉलिंग भी कर रही हूँ या फिर कुछ कर रही हूँ तो इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट फिक्स पोजीशनिंग। सो मूविंग अहेड फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, इसमें मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखो अभी क्या कॉल किया है मैंने, यहाँ पे एक मैंने फर्स्ट पोजीशनिंग, यहाँ पे हम लोग जो चेक करने वाले हैं इट इज फॉर रिलेटिव
फिक्स्ड पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने डॉट स्पेसिफाई किया है, क्लास को कॉल बनाया है, क्लास में डिक्लेरेशंस दिए हैं विद देयर पोजीशन एंड विद द वैल्यूज व्हिच आई वांट ऑन माय वेब पेज। नाउ हियर व्हेन आई नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज, यहाँ पे देखो मैंने और दूसरा पोजीशनिंग लिया है, उसके साथ में टैग्स के साथ में भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है स्टाइल टैग के अंदर में। नाउ व्हेन वी नीड टू कॉल इट एट दैट टाइम, फॉर हेडिंग लेवल 1 एक क्लास स्पेसिफिकेशन यूज किया जिसमें हमने फर्स्ट को कॉल किया है, फर्स्ट की वैल्यूज जो रहेंगे, जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो इसे इंप्लीमेंट की जाएगी। एंड लेट्स सी कि अगर मैंने h2 को यहाँ पे पोजीशनिंग किया है एब्सोल्यूट के साथ में, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, और विद रिलेटिव के साथ में आउटपुट क्या आने वाला है। मैं इसे सेव करती हूँ, सेव एज करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं सिलेक्ट डॉट html। तो मैंने यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, सेव किया है, सेव करते ही विल चेक इट। यहाँ पे जो हमारी फाइल है इसे मैं क्रोम के साथ में यूज करती हूँ। सो दिस इज द आउटपुट विच आई एम हैविंग राइट नाउ। सो व्हाट इज दैट, दिस इज HTML का हेडिंग टैग लेवल 1। HTML लेवल 1 को मैंने फर्स्ट को कॉल किया था, उसकी पोजीशन रिलेटिव की थी, जो टॉप में -10px के साथ में रहे और राइट कॉर्नर में रहे। ओके, देन उसी तरह से अगर मैं चेक करती हूँ राइट कॉर्नर में -10px के साथ में रहे, उसी तरह से मैं चेक करती हूँ कि h2 जो मैंने लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेसिफाइड रहेंगे। यू नो दैट द पोजीशन इज एब्सोल्यूट, सो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेसिफाइड रहेंगे। कैसे स्पेसिफाइड रहेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेसिफिकेशन रहेगा उसका लेफ्ट एंड टॉप। सो उस हिसाब से यहाँ पे हमने उसके स्पेसिफिकेशंस यूज किए हैं। सो दिस इज या पोजीशनिंग ऑफ CSS इन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वे। So this is all about the CSS positioning. इसके implementation आप चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस करो प्रोग्राम को, so you will understand more. Thank you.